آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں نور الدین انعامدار. خبروں کے اس سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر آج کی خاص خبروں پر. ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے. روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ. گھرکل مسالے. القائمہ فاؤنڈیشن کی جانب سے شہر میں منعقد کیا گیا جلسے یوم القرآن. مسلمانوں کی بدحالی اور پامالی کے لیے قرآن فہمی کا نہ ہونا سب سے بڑی وجہ. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا دانشوروں نے بندگان توحید کو دیا مشورہ. عوام کی فلاح و بہبود کے لیے چلائی جانے والی اسکیمات کا فائدہ ہر مستحق تک پہنچایا جائے. تحصیل آفس سلوڑ میں منعقدہ جائزہ میٹنگ میں ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے دی افسران کو ہدایت. ہر گھر ترنگا مہم کو کامیاب بنانے کی بھی عوام سے اپیل. ملک کی آزادی کے 75 سال مکمل ہونے پر ملک بھر میں منایا جا رہا ہے آزادی کا امرت مہوتسو. مگر بجلی سپلائی کمپنی کے لاپرواہ افسران کے سبب چکل تھانہ علاقے کی کئی بستیوں کے ساکنان 3 دن تک رہے بجلی سے محروم. NCP قائدین کے میدان میں آتے ہی 3 گھنٹوں میں درست کی گئی خرابی. اور جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کرنے والی کانگریس پارٹی نے کیا 9 تا 15 اگست کے درمیان آزادی گورو یاترا نکالنے کا اعلان. شہریان سے یاترا میں شامل ہونے کی گئی اپیل. اب خبریں تفصیل سے. قرآن کریم وہ آسمانی کتاب ہے جس میں مکمل نظام حیات سے متعلق تفصیلات درج ہیں. مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں عربی زبان پر عبور نہ ہونے کے سبب قرآنی تعلیم سے ناواقف ہیں اور یہی ہماری ناکامی کی سب سے اہم وجہ ہے. ان خیالات کا اظہار معروف اسکالر صداقت حسین نے کیا. صداقت حسین گزشتہ شام القائمہ فاؤنڈیشن اورنگ آباد کی جانب سے ادارہ بیت الیتیم میں منعقدہ جلسہ یوم القرآن سے مخاطب تھے. انہی کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس سے سیف محمد، ڈاکٹر مخدوم فاروقی، ڈاکٹر شعیب ہاشمی اور ڈاکٹر سہیل ذکی الدین نے بھی خطاب کیا. تمام مقررین نے مسلمانوں کی پسماندگی اور ان کی ہر شعبہ حیات میں ناکامی کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات کو نہ سمجھنا قرار دیتے ہوئے بتلایا کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کی بھلائی اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں آسمانی صحیفے اور آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. چونکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آنے والا ہے اور ان پر اتاری گئی آسمانی کتاب قرآن کریم تا قیامت آنے والے تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے، جس میں مکمل نظام حیات اور قوانین شریعت کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی علوم و فنون موجود ہیں ان تمام سے متعلق تمام تفصیلات درج ہیں. مگر ہماری حالت ایک ایسے فقیر جیسی ہے جس کے ہاتھ میں ایک سونے کا کٹورا موجود ہے اور اس کے بعد بھی وہ دوسروں سے بھیک طلب کر رہا ہے. قرآن کریم عربی زبان میں تحریر ہے اور ہماری بدقسمتی ہے کہ نہ تو ہم عربی جانتے ہیں اور نہ ہی کبھی ہم نے اسے سیکھنے اور سمجھنے پر توجہ دی ہے. گو کہ عصری تعلیم میں اسکول سے کالج اور یونیورسٹیوں تک عربی مضمون پڑھایا جاتا ہے، مگر ہم نے اس زبان کو صرف اتنا ہی سمجھا جتنا کہ ان اداروں کے نصاب میں ہے. حالانکہ قرآن کریم میں جو زبان استعمال کی گئی ہے اگر ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو خود بخود ہمارا ذہن کھل جاتا ہے اور پھر ہم جس فہم و فراست سے آشنا ہوتے ہیں وہ دنیا کا کوئی بھی علم ہمیں نہیں دے سکتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کتاب کا حق ادا کریں، اس کی زبان کو سیکھیں اور قرآن فہم بن جائیں تو دنیا بھی آپ کی اور آخرت بھی آپ کی. پروگرام کی نظامت ابو لالا شیخ نے کی جبکہ شکریہ کی رسم ظفر جبار خان نے ادا کی. اس کے بعد جلسہ اختتام پذیر ہوا. اس جلسے میں شہریان کثیر تعداد میں شریک ہوئے. تب ہم تک پہنچائے اور ہم ریڈی میڈ مسلمان ہیں جو ہمارے پاس لوگوں کے پاس ایسی کتابیں ہیں جو اگر بچہ بھی پڑھے گا تو بتائے گا یہ غلط ہے. ایک مثال دیتا آپ کو، ایک فقیر کے پاس سونے کا کٹورا ہے اور وہ بھیک مانگ رہا ہے. وہ ہماری ہی حالت ہے. ہمارے پاس ایک کتاب ایسی ہے جو حق ہے، جو سچائی ہے، جو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لاتی ہے. ہم اس کتاب کو چھوڑ کر بیکار چیزوں میں الجھے پڑے، مسلخوں میں الجھے پڑے. کیا ہمیں نہیں چاہیے کہ یہ معلوم کرے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ یہ بار بار دہرانے کی اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی قرآن کے تعلق سے پروگرام آرگنائز کیا گیا تو کتنے لوگ، یہ 1400 سال کا زنگ ہے، اتنی آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے.
क्या वजह है कि हम कुरान को पढ़ना तो दूर की बात, देखना भी नहीं चाह रहे? कितने लोग हो गए जो कुरान को समझ कर पढ़ते हैं? ये किताब पूरे आलम के लिए है, कुरान मजीद पूरी दुनिया के लिए है। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमजानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासी व बय्यिनाती मिनल हुदा वल फुरखान। रमजान वो मुबारक महीना था जिसमें कुरान उतरा इंसानियत की हिदायत के लिए, मुसलमानों की हिदायत के लिए नहीं कहा गया है, ये तमाम इंसानियत की हिदायत की किताब है। कुरान हुदल लिन्नास है, ये हिदायत की किताब है, यानी कि ये किताब तमाम आलम के लिए एक हिदायत का जरिया है। हर इंसान के लिए सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक का आपका किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, ये तमाम मुकम्मल मालूमात इस किताब में दी गई है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये कुरान मजीद कौमों के लिए हिदायत है, हिदायत के लिए गौर व फिक्र करना जरूरी है। इस किताब का एक एक लफ्ज, एक एक सतर समझकर पढ़ने की जरूरत है। कुरान कम से कम इतना हक़ तो रखता है कि उसको बग़ैर समझे बूझे ना पढ़ा जाए, ना नमाज़ों में, ना तरावियों में, ना अपनी ज़िंदगियों में, बल्कि ये ज़िंदा व जावेद किताब है उस ज़िंदा व जावेद हस्ती की तरफ से जो आपका भी खालिक है, आपका भी मालिक है और हमारा भी है। तो उसका हक़ तो बनता है कि कम से कम उसका जब कलाम हमारे सामने आए तो हम समझने की कोशिश करें कि हमारा खालिक हमसे क्या कहना चाहता है, वो क्या बातें हैं, क्यों इतना एफ़र्ट लगाया कि अंबिया का एक सिलसिला बनाया, सबको किताबें दी, किताब देकर भेजा। तो इसका हक़ तो इतना बनता है कि उसकी किताब को समझने की और डायरेक्ट उसकी ज़बान में समझने की कोशिश की जाए। और अगर हम जॉब हासिल करने के लिए अंग्रेज़ी और फ़्रेंच सीख सकते हैं तो अल्लाह के यहाँ आखिरत में कामयाबी, हमेशा हमेशा की कामयाबी के लिए कम से कम इतना तो करें कि अल्लाह की ज़बान सीखें। आम आदमी के लिए शुरू करता स्कीमों व मंसूबों के कामों की अदायगी में सरकारी अमले तेज़ी लाएं, इस तरह की हिदायत जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने सिल्लोड में मुनक़िद एक जायज़ा मीटिंग में दी है। सिल्लोड के दफ्तर तहसील में घर घर तिरंगा, स्वराज महोत्सव, ई फसल जायज़ा, 7/12 कंप्यूटराइजेशन और तवालत में पड़ी फेरफार की कार्रवाइयों के जायज़े से मुताल्लिक़ ये मीटिंग ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान की सदारत में मुनक़िद हुई। इस मौके पर चौहान ने कहा कि हुब्बुल वतनी के इजहार के लिए कई तरीक़ेकार व रास्ते हैं, लेकिन सम्मान व एज़ाज़ का ये एक ही रास्ता है और इस मौके पर कौमी परचम की किसी भी तरह की इहानत न हो, इस बात पर खुसूसी तवज्जो देनी ज़रूरी है। उन्होंने अमृत महोत्सव के इस पर्व में तमाम दफातर की साफ़ सफाई की हिदायत भी की और आवाम से मोहब्बत का बर्ताव करने व ई फसल जायज़ों की सरगर्मी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का मशवरा भी मुतअल्लिक़ हुक्काम व मुलाज़मीन को दिया। इस मीटिंग से कबल ज़िला कलेक्टर के हाथों दफ्तरी अहाते में शजरकारी की गई और फिर घर घर तिरंगा के मालूमाती रथ को उन्होंने हरी झंडी दिखाई। इस मुहिम की कामयाबी व बेदारी के लिए बोलती गुड़ियाओं का सहारा लेने वाली सरला कुमावत और भारूड़कर शेखर निरंजन भाकरे का कलेक्टर मौसूफ के हाथों इस्तकबाल किया गया। इस मीटिंग में सब डिविजनल ऑफिसर संदीप पाटिल, SDPO विजय मराठे, तहसीलदार विक्रम राजपूत, सोएगांव के तहसीलदार रमेश जसवंत, बल्दिया CEO सैयद रफीक, सिल्लोड व सोएगांव पंचायत समितियों के BDO और दीगर अहम अफसरान मौजूद थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांनी 9 ऑगस्टला स्वराज्योत्सव म्हणजे 9 ऑगस्ट ते 17 ऑगस्ट आणि दिनांक 13 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट हर घर तिरंगा हे कार्यक्रम सुरू केले। मित्रांनो, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आपल्या स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झालेत। आपण आझादीचा अमृत महोत्सव साजरा करतोय। या कालावधीमध्ये देशातल्या सगळ्या नागरिकांना एकत्र करून राष्ट्रप्रेमाची भावना अधिक मोठ्या प्रमाणात जागी करणे, ध्वजाच्या प्रती सगळ्यांचं उत्तरदायित्व वाढवणे, ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी आपलं बलिदान दिले किंवा ज्या भारतीय लष्कराच्या जवानांनी आपल्या ज्या लढाया झाल्या, त्याच्यापैकी काही लढाया पाकिस्तानबरोबर झाल्या, काही चायनाबरोबर झाल्या, नंतर कारगिलचं वॉर झालं, याच्यामध्ये त्यांनी त्यांच्या प्राणांचं बलिदान देऊन या देशाचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवलं, त्यांची आठवण ठेवण्यासाठी हा आपण कार्यक्रम करतो। चिकल थाना इलाके में आबाद कई बस्तियों में गुज़िश्ता दिनों से बिजली ना होने के सबब हर घर में अंधेरा है।
लिहाजा एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन की रहनुमाई में एक वफ्द ने बिजली सप्लाई कंपनी के मुताल्लिका अफसरान से मुलाकात की और 3 घंटों में वहां बिजली फराहम करवाई, जिसके सबब इलाके के साकिनान ने मुसर्रत का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक नारेगांव, बिस्मिल्ला कॉलोनी, पटेल नगर, आयशा पार्क, रहमत मस्जिद और दीगर बस्तियों में गुज़िश्ता 3 दिनों से अंधेरा था और पूरे इलाके में बिजली मसदूद थी। एनसीपी यूथ के नायब सदर पाशाह अंसारी ने इलाके के साकिनान को दरपेश इस मसले से एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन को वाकिफ करवाया, जिस पर ख्वाजा शरफुद्दीन की रहनुमाई में एनसीपी यूथ के शहर सदर डॉक्टर मयूर सोनो ने नायब सदर मुख्तार खान, कारगुजार सदर क़य्यूम अहमद शेख, जानी जावेद खान, विलास मगरे, विशाल वैराले, ऋषिकेश खैरे, सुशील अंभोरे, अजय साड़वे और दीगर ओहदेदारान बिजली सप्लाई कंपनी के मुताल्लिका दफ्तर पहुंचे और इस मामले में कामयाब नुमाइंदगी करते हुए बंद डीपी की मरम्मत करवाई और 3 घंटों में इलाके की बंद बिजली बहाल करवाई। एनसीपी के ओहदेदारान ने बताया कि बिजली सप्लाई कंपनी के लापरवाह अफसरान को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा मुताल्लिका कंपनी के आला अफसरान से करेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कांग्रेस की जानिब से 9 ता 15 अगस्त के दरमियान आज़ादी गौरव यात्रा निकाली जाएगी, लिहाजा शहरियान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले, ये अपील पार्टी के रियासती सेक्रेटरी सचिन सावंत ने आवाम से की है। वाज़ेह रहे कि आज मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लिहाजा हुकूमत ने इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ऐलान किया है, जिसके तहत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। चूँकि आज़ादी की जंग में कांग्रेस का किरदार सबसे अहम था, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने भी इस साल मुल्क भर में गौरव यात्रा निकालने का फ़ैसला किया है। ये यात्रा 9 ता 15 अगस्त के दरमियान निकाली जा रही है, लिहाजा इस यात्रा की तैयारियों की ज़िम्मन में कांग्रेस पार्टी के रियासती सेक्रेटरी सचिन सावंत आज औरंगाबाद आए थे और इस मौके पर उन्होंने पार्टी वर्कर्स की रहनुमाई के लिए एक मीटिंग गांधी भवन में तलब की और उन्हें पार्टी प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया और उन्हें हिदायत दी कि इस गौरव यात्रा को कामयाब बनाने के लिए पार्टी का हर एक रुकन अपनी जिम्मेदारी निभाए और इस मुल्क के हर फर्द तक पहुंचकर उनसे इस यात्रा में शामिल होने की दरख्वास्त करे। इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी के शहर सदर यूसुफ शेख, एडवोकेट सैयद अकरम, अंजलि वर्जे पाटिल, शकीला शेख, दीपाली मिसाड़, देवकांता सोनवने, दीक्षिता पवार और माधवी चंद्र के अलावा दीगर ओहदेदारान वर्कर्स शरीक थे। पार्टी वर्कर्स की मीटिंग के बाद सचिन सावंत ने सहाफ़ियों से मुलाकात की और बताया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल हो जाने पर मुल्क की सतह पर 9 ता 15 अगस्त के दरमियान गौरव यात्रा का अहतमाम किया जा रहा है, जिसके ज़रिए कांग्रेस की खिदमत को आवाम तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीनं 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्टपर्यंत आझाद या क्षणाचा त्या ठिकाणी सेलिब्रेशन करण्यासाठी आझादी गौरव यात्रा हाती घेतलेली आहे आणि ती प्रत्येक जिल्ह्यामधनं होणार आहे। राष्ट्रीय स्तरावर तर ती होतच आहे, परंतु प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या कालावधीमध्ये 75 किलोमीटर पदयात्रा हाती घेण्यात आलेली आहे आणि ती औरंगाबाद शहरामध्ये देखील आता जाणार आहे आणि त्याचबरोबर जिल्ह्यामध्ये देखील जाणार आहे आणि याचा रूट जो आहे कसा असणार आहे, कशा पद्धतीचे असणार आहे ते आपल्याला लवकरच त्या ठिकाणी जाहीर करण्यात येईल। आज़ादी का अमृत महोत्सव की सरगर्मियों के तहत भाजपा की ख्वातीन मोर्चे की जानिब से पौधों की दिंडी निकाली गई। मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और हुकूमत हिंद की हिदायत के मुताबिक इन दिनों मुल्क भर आज़ादी का अमृत महोत्सव जारी है, जिसके तहत मुख्तलिफ किस्म की अवामी और रिफाई सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ औरंगपुरा ता IMA हॉल तक भाजपा की ख़वातीन मोर्चा की मकामी इकाई की जानिब से एक वृक्ष दिंडी निकाली गई और शहरियान को शजरकारी के ज़रिए माहौलियाती तवाज़ुन की बरकरारी के तईं अवाम में बेदारी का पैगाम दिया गया। इस दिंडी में भाजपा के रियासती जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली अतुल सावे, महिला मोर्चा की रियासती सदर और विधान परिषद की रुकन उमाताई खापरे, शहर ज़िला सदर वो महाडा के सभापति संजय केनेकर, रियासती नायब सदर बसूराजप्पा मंगरूले, रियासती सेक्रेटरी प्रवीण घुगे, मनोज पांगरकर, रियासती महिला मोर्चा जनरल सेक्रेटरी सविता कुलकर्णी, दीपाली मोकाशी, अश्विनी जिचकार और दीगर कसीर तादाद ओहदेदारान खुसूसी तौर पर मौजूद थे। स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाले। आझादी का अमृत महोत्सव म्हणून देशभरामध्ये हर घर तिरंगा हे अभियान राबवलं जात आहे आणि त्याच्यातलाच एक भाग म्हणून आज महिला मोर्चाने 75 झाडं लावून आणि
प्रत्येक ठिकाणी वृक्षदिंडी काढून आज हा साजरा केला जात आहे। त्यानिमित्त सर्व महिला भगिनींना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो। सरस्वती सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी तालीमी अदारे की लड़कियों में साइकिलें तकसीम की गईं। साइकिलों की ये तकसीम मानव विकास मिशन की जानिब से अमल में आई। आ रहा है कि आज भी देही मकामात की तालिबात को हुसूल तालीम के लिए मुख्तलिफ दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अक्सर बच्चियों पर घरेलू कामों का बोझ भी होता है और उन्हें मुताले व पढ़ाई के लिए खातिर खा वक्त भी नहीं मिल पाता। कई तालिबात को स्कूल जाने के लिए लंबी मसाफत पैदल चलना भी पड़ता है। इन मसाइल के सबब तालिबात तालीम के हुसूल से महरूम न हो जाएं, इस मकसद से हुकूमत मानव विकास मिशन के तहत लड़कियों में साइकिलें तकसीम करती है ताकि तालिबात की स्कूल आवाजाही की सऊबतों को कुछ कम किया जा सके और लड़कियों में तालीम हासिल करने के तई हौसला पैदा हो। इस मकसद के तहत ताल्लुका फुलमरी में हाल ही में शामिल किए गए तलेगांव के सरस्वती माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल में पंचायत समिति भोकरदन ने मज़कूरा इंसानी तरक्याती मिशन के तहत 31 तालिबात को साइकिलों का तोहफा दिया। ये तोहफा इदारे के सदर कैलाश पाटिल गौहाड़ के हाथों दिया गया। इस मौके पर बबन राव पुंगले व असातिज़ा शिंदे, बहुते, भोईटे, आचार्य, नाचन कुलते, काकड़े व दीगर मौजूद थे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के सामने जारी साबिक रुकन असम्बली हर्षवर्धन जाधव की हड़ताल को वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपनी हिमायत का ऐलान किया है। वाज़ेह है कि रायभान जाधव विकास अघाड़ी की जानिब से साबिक एमएलए हर्षवर्धन जाधव ने म्यूनिसिपल दफ्तर के सामने हड़ताल शुरू कर रखी है। वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती सदर व स्पोक्स पर्सन फारूक अहमद की रहनुमाई में एक वफद ने उनसे मुलाकात की और उनसे तफसीली बातचीत करने के बाद उनकी हड़ताल को जायज़ ठहराते हुए उनकी मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। इस वफद में वीबीए की महिला प्रदेश सदर अरुंधति शिरसाट, औरंगाबाद वस्त के शहर सदर अहमद जलीस, औरंगाबाद मगरिब के शहर सदर योगेश बंद और प्रभाकर बकले समेत दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स शामिल थे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी के बावजूद देवा नगरी दा प्रताप नगर रास्ते का काम शुरू ना हुआ तो यहाँ के साकिनान ने इंसानी जंजीर बनाकर इंतज़ामिया की मजम्मत की और मस्कूरा दफ्तर पर मोर्चा ले जाने का इंतबाह दिया। शहर के संग्राम नगर फ्लाईओवर के नशेब में दरगाह शाहनूर मियाँ रोड पर देवानगरी ता प्रताप नगर का रास्ता इंतहाई ख़राब हाल है। रास्ते पर जा बजा बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं और सारा का सारा रास्ता छलनी छलनी हो चुका है, जिसके सबब राहगीर व गाड़ी सवारों का यहाँ से गुजरना मुश्किल हो गया है। अक्सर गाड़ियाँ गड्ढों से उछल कर गिर पड़ती हैं और हादसात रौनुमा हो रहे हैं। बाहर से इस रास्ते पर गाड़ी व रिक्शा वगैरह लाने से बचते हैं, जिसके सबब यहाँ के साकिनान को पैदल फ्लाईओवर के नीचे तक जाना पड़ता है, जिसके सबब तलबा व मरीजों को निहायत परेशानियाँ लाहिक हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस रास्ते का काम मंजूर शुदा है, ताहम सुस्त व काहिल इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। साबिक कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे से साकिनान ने 18 जुलाई को मुलाकात की और फौरी काम शुरू करने का मुतालबा भी किया था। पांडे ने एडिशनल कमिश्नर को फौरी रास्ते का काम शुरू करने का हुक्म भी दिया था, ताहम ये अभी तक ना हो सका। तो अब यहाँ के अवाम मुश्तइल हो उठे हैं और उन्होंने एहतजाजी जंजीर बनाकर अपना मुतालबा दोहराया है और बसूरत दीगर ASCDCL के दफ्तर पर मोर्चा निकालने का इंतबाह दिया है। इस एहतजाज में साबिक कारपोरेटर शोभा बुरांडे, साबिक डिप्टी मेयर संजय जोशी, श्वेता जायसवाल, निर्मला कुलकर्णी, नरेश मेघराजानी, प्रदीप बुरांडे, रीना दाभाड़े व दीगर कसीर तादाद में मर्द व ख्वातीन ने शिरकत की। 2 बार मेरा एक्सीडेंट हुआ है, हाथ का पैर का, मैं गिर गई हूँ और बहुत ही मुश्किल चल रहा है। तो हमारी सबसे यही विनती है, जल्दी से जल्दी रोड को सही बनाया जाए, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद। म्हातारी माणसं तर बाहेर पडू शकत नाही। दुसरी गोष्ट अशी आहे की आमच्याकडे ओलावाला बुक जर केला तर तो आम्हाला सांगतो तुम्ही पुलाखाली या, तिथून मी तुम्हाला पिक करतो। देवानगरीमध्ये ओलावाला सुद्धा येत नाही। एखादा रुग्ण तर रात्री आम्हाला दवाखान्यात न्यायची वेळ आली, कोणाचा ऍक्सिडेंट झाला तर कसं करणार, कसं नेणार त्या रुग्णाला पुलापर्यंत। घरच्या गाड्या सुद्धा म्हणजे पंक्चर होतात, सारख्या गड्ड्यांमध्ये पडतात, लहान मुलं पडतात, लहान मुलं, म्हातारे माणसं तर घराच्या बाहेरच पडत नाही। पायी चालणं सुद्धा इथे इतकं मुश्किल होऊन गेलंय। इथला एक मोठा गड्डा आहे, त्याच्या पलीकडे स्मशानभूमीजवळ एक मोठा गड्डा आहे, तर तो गड्डा तर इतका डेंजर आहे, त्याच्या बाजूला नाला आहे, तिथून जर गाडीवर कोणी गेलं तर ते डायरेक्ट नाल्यात जाणार।
आज आम्ही हे रोडसाठीच केलं, साखळी आंदोलन केलं आणि हे असं काय आमच्या देवानगरीच्या वासियांनी सगळ्यांनी मिळून केलं. हे कोणाच्या पक्षाचं वगैरे काही नाही, फक्त रोड चांगला व्हावा आमच्या देवानगरीचा, यासाठी आम्ही आंदोलन केलेले आहे. ह्या सगळ्या माझ्या मैत्रिणी जे सगळं बोलल्या ह्याच्यात मी सहमती आहे. मी सकाळी 6 वाजेपासून मुलीला सोडायला जाते, तर मला ह्या सगळ्या प्रॉब्लेम्स फेस कराव्या लागतात. त्यामुळे मी ही विनंती करते की आमची सगळ्यांची जी कळकळीने तुम्हाला सगळ्यांना आयुक्तांना विनंती आहे की या रस्त्याकडे लक्ष द्या आणि आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. आम्ही सकाळी शाळेत जाताना आम्हाला खूप त्रास होतो, सायकल वगैरे काही चालवताना युनिफॉर्म वगैरे सगळं खराब होऊन जातं. मग स्कूलमध्ये आम्हाला टीचर सांगत की युनिफॉर्म इतका घाण वगैरे काय. आणि सकाळी एक माणूस दूध द्यायला येत होता, त्याची पूर्ण कॅन सांडून गेली, त्याचं खूप नुकसान झालं. मला इथं राहायला येऊन जवळजवळ 30 वर्ष झालेत आता, म्हणजे अगदी 4थं घर आहे आमचं झालेलं. तर तेव्हापासून फक्त एकच वेळेस रस्ता झालेला आहे हा, आणि आता सध्या खूप खराब परिस्थितीत आहे आणि दररोज एक ऍक्सिडेंट होतोय तिथं सध्या. तर आता एक कॉलेजचा विद्यार्थी पडलाय परवा, त्याचं पोटाला बरंच लागलेलं आहे, नुकसान झालेलं आहे. तर त्याच्यासाठी हे साखळी आंदोलन केलेलं आहे. तर लवकरात लवकर याची दाखल घेऊन आमचा रोड तयार करावा. की आपला म्हणजे आमचा जो रोड आहे तो अत्यंत खराब झालेला आहे आणि अक्षरशः मी 4 वेळेस पडता बसली आणि पहिल्या वेळेस तर मी म्हणजे कंट्रोल नाही करू शकले की इतक्या त्या खड्ड्यामधून म्हणजे कुठून जावं हा मला प्रश्न पडला. की म्हणजे इकडून जावं तरी खड्डा, इकडून जावं तरी खड्डा आणि समोरून खड्डा, जावं कुठून. म्हणजे मी प्रयत्न करून गेले पण मी पडले आणि अक्षरशः माझ्या पायाला लागलं. म्हणजे ते किती आता डेंजर आहे. आता इतके मुलं जातात रोडवरून, त्या मुलं जाणं येणं करतात, त्यांची पण खूप धांदल होते आणि त्यांना पण खूपदा हा अनुभव आलेला आहे की ते पण सांगतात की मम्मी आम्ही आज पडता वाचले. पण म्हणजे आता हे किती दिवस चालेल, म्हणजे सरकारने याकडे लक्ष द्यावे हीच माझी विनंती आहे त्यांना. बीड़ बाईपास रोड से मुत्तसिल हमीद कॉलोनी में सीमेंट रोड की तामीर के लिए साल 2020-21 के बजट में गुंजाइश होने के बावजूद मुताल्लिका इंतज़ामिया यहाँ पुख्ता रास्तों की तामीर में टाल मटोल कर रही है। ये इल्ज़ाम इलाके के साकिनान ने लगाया है। उनका कहना है कि हमीद कॉलोनी में अब तक औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने पुख्ता रास्ते तामीर ही नहीं करवाया, जिसकी वजह से अक्सर बरसात के मौसम में यहाँ के साकिनान को सैलाब जैसी सूरत हाल का सामना रहता है। रास्ते कच्चे होने के सबब बारिश से वो दलदल में तब्दील हो जाते हैं और फिसलन के सबब आए दिन कोई ना कोई हादसे का शिकार हो जाता है। हालांकि यहाँ रास्तों की तामीर के लिए माली साल 2020-21 के सालाना बजट में फ़ंड फराहम भी करवाया गया था, मगर मुताल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने इसका हेड तब्दील करके वो काम कहीं और करवा लिया, जिसकी शिकायत इलाकाई कमिश्नर, ज़िला कलेक्टर और म्यूनसिपल कमिश्नर के अलावा मुताल्लिका वजारत से भी की गई, मगर आज तक इन्हें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों का मुतालबा है कि हमीद कॉलोनी में फौरी पुख्ता रास्ते तामीर करवाए जाएं, बसूरत दीगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर ज़ोरदार एहतजाज किया जाएगा। सेंक्शन हुआ है, बच्चों को उनके स्कूल को जाने आने सवेरे बहुत परेशानी हो रही, रास्ता बहुत चिक्कड़ का है, इसको ज़रा दुरुस्ती कर दो। सेंक्शन हुआ है मगर इस पे गौर नहीं कर रहे। आमदार साहब ने निधि दिया, आमदार साहब ने निधि दी है, बच्चे गिर रहे पड़ रहे, बाहर बुढ़े दांडे चलना नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, चिक्कड़ हो रहा। कौन ठेकेदार है क्या है, उसको देखो, कार्रवाई करो, उस पे इतना काम करके दो। संजय सिरसाट साहब ने सब काम करके दिए हुआ, इधर का निधि दे दिए, पैसे आ गए, सब पास होगा। फिर अधिकारी का काम है रोड का जल्दी काम करना। यहाँ से वहाँ तक पूरा चिक्कड़ ही चिक्कड़ है, आधा घंटा गली पार करने लगता। ठेकेदार पे कार्रवाई होना, ये कैसा सब निधि विधि पास होने के बाद एजेंसी वाले क्यों ऐसा काम कर रहे हैं? ये एजेंसी है क्या, डम्मी है क्या? ये कार्रवाई होना इसके ऊपर जो है इसका अधिकारी काम करने वाला। कास्ट वाइज ओबीसी की मर्दमशुमारी के मुतालबे को लेकर ओबीसी, एससी, एसटी, नॉन पॉलिटिकल सोशल फ्रंट की जानिब से डिविजनल कमिश्नरेट पर धरने आंदोलन किया गया। मज़ाहिरीन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जुलाई 2022 को बांटिया कमीशन की सिफारिशात के पेश नज़र ओबीसी समाज का सियासी रिजर्वेशन बहाल तो कर दिया, मगर इस रिपोर्ट में ओबीसी की आबादी कम दिखाई गई है, जिसकी वजह से दीगर पसमानदा तबकात को इख्तियार में नुमाइंदगी कम मिलेगी। ये डाटा जमा करते वक्त मुताल्लिका कमीशन ने तरनीम के मुताबिक ओबीसी समाज का औसत तय किया है, जो सरासर गलत है। लिहाजा ज़ात की बुनियाद पर ओबीसी की मर्दमशुमारी करवाई जाए और आबादी के लिहाज से ओबीसी का कोटा दिया जाए। इस मुतालबे पर आज डिविजनल कमिश्नरेट पर धरना दिया गया। ये धरना ओबीसी, एससी, एसटी, नॉन पॉलिटिकल सोशल फ्रंट की जानिब से दिया गया है, जिसमें
OBC ज़ुमरे में शामिल सभी तबकात की मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान व वर्कर्स शामिल हुए। आणि हे आरक्षण 100% मिळण्यासाठी किंवा प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी OBCची जातनिहाय जनगणना केलीच पाहिजे असं बंटिया आयोगाने सुप्रीम कोर्टामध्ये सादर केलेल्या अहवालामध्ये तरतूद दिलेली आहे। ज्या सर्व समस्याचं मूळ जर कुठलं असेल तर ते आहे फक्त जातनिहाय जनगणना। ती जातनिहाय जनगणना होण्यासाठी या औरंगाबाद शहरातील तमाम OBC संघटना OBC SC/ST नॉन सोशल फ्रंटच्या माध्यमातून मागच्या 1.5 वर्षापासून 21 जून 2021 पासून याविषयी आंदोलन करत आहे। या आंदोलनाच्या टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्वप्रथम आम्ही विभागीय आयुक्ताला 1-2 वेळेस निवेदन दिले, बऱ्याच वेळेस आम्ही पत्रकार परिषदा घेतल्या आणि बऱ्याच वेळेस आम्ही धरणे केले। याचा पहिला टप्पा आमचा मागच्या महिन्यामध्ये आम्ही विभागीय आयुक्तालयासमोर निदर्शने केली। त्याचा दुसरा टप्पा म्हणजे आजचे धरणं आंदोलन आहे। परंतु आम्ही OBCची जातनिहाय जनगणना पूर्ण झाल्याशिवाय हे आंदोलन कदापि स्थगित करणार नाही, एवढंच या ठिकाणी सांगतो। ग्राम पंचायत ने एक शख्स को काम करने से रोक दिया तो इसने दफ्तरी साजो सामान तोड़ फोड़ दिए। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम के तहत मज़कूरा शख्स के खिलाफ बड़ौद बाजार पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। बड़ौद बाजार पुलिस थाने की हदूद में वाक़ मज़ाफ़ात निधोना में एक शख्स भास्कर नरोड़े को ग्राम पंचायत की जानिब से काम करने से मना कर दिया गया तो नरोड़े गज़बनाक हो गया और इसने मुश्तइल होकर दफ्तर में हंगामा बर्पा कर दिया और दफ्तरी अमलाक की कुर्सियाँ, CCTV, DVR मशीन और पंखों को तोड़ फोड़ कर रख दिया। इस मामले में ग्राम सेवक रमेश सुरड़कर ने इसे समझाने व बीच बचाव की कोशिश की तो नरोड़े ने उनके साथ ही गाली गलौज की और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। ग्राम सेवक की फरियाद पर बड़ौद बाजार पुलिस ने नरोड़े के खिलाफ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने से मुताल्लिक व दीगर कवानीन के तहत मामला दर्ज कर लिया। माविन इंस्पेक्टर आरती जाधव की रहनुमाई में कांस्टेबल मालोदे इस केस की जाँच कर रहे हैं। बहन की बेलिबास तस्वीर वायरल ना करने के बदले में भाई से 85,000 रुपए की खंडनी मांगने वाले औबाश मुलजिम को मुकुंदवाड़ी पुलिस ने घात लगाकर दबोच लिया, जबकि इसके साथी मुलजिम मफरूर हैं। नाजरीन, पैसों के लिए किसी को ब्लैकमेल किया जाना अब कोई नई बात नहीं रह गई है। इसके लिए मुजरमाना ज़हन अफराद नित नए हथकंडे अपनाते हैं। इसी तरह का एक अखलाक सोज हथकंडा मंजर आम पर आया है। शहर के मुकुंदवाड़ी इलाके में एक भाई ने हिम्मत दिखाते हुए मुकुंदवाड़ी पुलिस से रुजू किया और पुलिस ने भी फौरी मुस्तैदी दिखाई और मुलजिम को फौरी गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, इस तरह के मामलात में अक्सर लोग अपनी व ख़ानदान की बदनामी के डर से मुजरिमों के चुंगल में फंस जाते हैं और उनका मुतालबा किसी तरह से भी पूरा कर देते हैं। ताहम इस किस्म के समाज दुश्मन अनासिर की सरकूबी भी नहायत ज़रूरी होती है और इसी गर्ज से इस भाई ने हिम्मत दिखाई और खंडनी बहादुरों की धमकी की परवाह न करते हुए पुलिस से रुजू कर लिया। मुकुंदवाड़ी पुलिस ने घात लगाकर एक मुलजिम को दबोच भी लिया है और उसके दीगर साथियों की भी तलाश जारी है। जिला सतह के भाला फेंक मुकाबलों में शाहरुख शेख, चंचल देवकर, आदित्य नरोड़े और वैशाली लिंगायत अपने अपने ग्रुप से फातेह करार पाए। नाजरीन, जापान के शहर टोक्यो के ओलंपिक मुकाबलों में भारत के नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक मुकाबले में एथलेटिक्स की किस्म के मुकाबलों में सोने का तमगा हासिल करके तारीख रकम की है। चोपड़ा की कारकर्दगी दीगर मुल्क भर के खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई का सबब बनी है और ये कामयाबी इसी तरह एथलेटिक्स में हौसला बख्श बनी रहे, इस गर्ज से एथलेटिक्स संघ की जानिब से 7 अगस्त को मुल्क भर कौमी भाला फेंक दिन के तौर पर मनाया गया। औरंगाबाद में ज़िला एथलेटिक्स एसोसिएशन की जानिब से सरस्वती भवन कॉलेज के मैदान पर ज़िला सतह के ये मुकाबले मुनक़िद हुए। इस मौके पर एथलेटिक्स महासंघ के माविन सेक्रेटरी पंकज भार साकड़े, ज़िला स्पोर्ट्स ऑफिसर चंद्रशेखर घुगे, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर माधव गायकवाड़ व दीगर नामवरीन मेहमानाने खुसूसी थे। इन मुकाबलों में अपने अपने ग्रुप से शाहरुख शेख, चंचल देवकर, आदित्य नरोड़े व वैशाली लिंगायत ने अव्वल नंबर हासिल किया तो 4 जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है। आज आलमी यौम दोस्तान के मौके पर छोटे बच्चों में भी खुशी का माहौल देखा गया।
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर देखते हैं आज की सुर्खियां। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अलकायमा फाउंडेशन की जानिब से शहर में मुनक़िद किया गया जलसे यौमुल कुरान, मुसलमानों की बदहाली और पामाली के लिए कुरान फहमी का ना होना सबसे बड़ी वजह, कुरान को समझकर पढ़ने और इस पर अमल करने का दानिशवरों ने बंदगान तौहीद को दिया मशवरा। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए चलाई जाने वाली स्कीमात का फ़ायदा हर मुस्तहिक तक पहुँचाया जाए। तहसील ऑफिस सिल्लोड में मुनक़िदा जायज़ा मीटिंग में ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी अफसरान को हिदायत, हर घर तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने की भी अवाम से अपील। मुल्क की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में मनाया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, मगर बिजली सप्लाई कंपनी के लापरवाह अफसरान के सबब चिकल थाना इलाके की कई बस्तियों के साकिनान 3 दिन तक रहे बिजली से महरूम। एनसीपी कायदीन के मैदान में आते ही 3 घंटों में दुरुस्त की गई खराबी। और जंग आज़ादी में अहम किरदार अदा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने किया 9 ता 15 अगस्त के दरमियान आज़ादी गौरव यात्रा निकालने का ऐलान, शहरियान से यात्रा में शामिल होने की गई अपील। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा अब ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए नूरुद्दीन इनामदार को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।